Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. In the previous lecture, we were discussing the different aspects of program structure. We looked at the different important parts that your algorithm will look like when creating an algorithm. We also study what a variable is, the important aspects of a variable, including the identifier and what are the rules for setting an identifier, the types of variable that you will be commonly using in your O levels and IGCSE program, and most importantly, today we'll be discussing the declaration. Okay. Acha, first of all, the declaration, let's separate the declaration first. Okay. Declaration कौन सा part होता है? Declaration means that you are declaring one, the variable identifier, and two, the variable type. So in this case, for example, a common syntax for declaration would look something like declare. As you notice कि यहाँ पे मैं जहाँ पे भी keywords use कर रहा हूँ तो मैं उनको capitalize करके लिखूँगा. Your paper can do something different. Your paper can use bold to highlight keywords. ठीक है? There is no defined rule. Usually, a common practice is that you capitalize the keywords. So declare, since it's a keyword, it's basically creating an announcement that now you're going to be we could be declaring a variable, or it could be an array, whatever it is. But whatever you're trying to create new for your program, you start from the declaration keyword. Okay? So after the declare keyword, you will mention the identifier. So ये जो symbol मैं लगा रहा हूँ ना यहाँ वाला, this is just temporary placeholder value. Example मैं आपको बताऊंगा कि these are replaced by the actual values. ठीक है? Identifier name आ जाएगा आपका जो भी आप choose करेंगे. ठीक है? इसको and then of ये colon लगा होता है. This colon means what? Of type. So this declaration has to state the identifier which you have just done. Second thing, it has to state the type of variable. ठीक है? So यहाँ पे आपके पास आ जाएगी type. यहाँ पे हम type mention कर देंगे. So again, for declaration statement for a variable, you need three parts. You need actually four parts. You need the declare keyword, followed by the chosen variable, followed by the of type symbol. This symbol means of type, and then the type amongst one of these. Okay? So let's say, for example, I am using, I want to create an integer type variable. Okay? So integer type variable के लिए हम declare, this is an example now, declare my num is the identifier of the integer type variable. This will be of type, this will symbol means of type, and since it's integer, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? Integer. अब मैंने basically अपने program code को, if this was written actually as a program code, आप Python को छोड़ दे किसी और language, basic की बात कर लें. चलें, basic में आपने इस line का मतलब ये है, आपने simply क्या किया है कि अपने language translator को announce कर दिया है कि I will be using this word my num from now on, ताकि आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर को समझ आ जाए कि दिस वर्ड मीन्स समथिंग. अगर आप इसको डिक्लेयर नहीं करोगे एंड स्टार्ट यूजिंग इट राइट अवे, तो आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर व्हाइल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग विल क्रिएट अ सिंटैक्स एरर हियर बिकॉज इट डज नॉट नो व्हाट माय नाम इज. जो आप वर्ड सामने लिखोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, या तो कीवर्ड्स होंगे या वो ऑपरेटर्स होंगे. ठीक है? जिसकी वजह से वो सारी उसकी डिक्शनरी में. फॉर एग्जांपल हम पाइथन में प्रिंट यूज़ करते हैं, राइट? पाइथन में इक्वल का साइन यूज़ करते हैं. दीज आर ऑपरेटर्स एज वेल एज कीवर्ड्स व्हिच पाइथन रिकॉग्नाइजेस. और जब वो सामने लिखा होगा, पाइथन उसको पढ़ते ही अंदाजा लगा लेगा कि आप इसको करना क्या चाहते हैं, बिकॉज उसकी लैंग्वेज का पार्ट है. Now I have written a word my num which is not part of its language, so it will not understand what this thing is. If you have created a proper declaration, then Python will know, या कोई भी language translator, it will know that you are meaning to use this as a variable name, and आगे जहाँ जहाँ use होएगा, it will be treated as an integer. ठीक है? So basically you are just announcing to the language translator that you will be using this word or this term from now onwards. ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे आपने यहाँ क्या किया है कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल माय नम के साथ डिक्लेयर कर दिया. दैट्स ऑल देयर इज टू डिक्लेरेशन. ठीक है? इसी तरीके से अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो हम क्या करेंगे? डिक्लेयर माय नेम, सॉरी,
my name as type string like so simple. ठीक है, इसी तरह डिक्लेयर माई क्या कहते हैं या फी पेड, ये एक फ्लैग है तो इसको हम बूलियन कर देते हैं। ठीक है, फ्लैग टाइप वेरिएबल्स अगेन कौन से होते हैं, जो या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सो बूलियन टाइप वेरिएबल वही होता है जिसमें ट्रू फॉल्स वैल्यू होल्ड करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। सो दिस इज एग्जांपल्स ऑफ डिक्लेरेशंस। ठीक है, अच्छा नाउ लेट्स लुक एट समथिंग नेक्स्ट। ठीक है, अब देखें हमने नेक्स्ट स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, इफ यू रिमेंबर देयर इज थिंग नोन एज वैल्यू वैल्यू असाइनमेंट। ठीक है ना, अब मैं आपको बताता हूँ असाइनमेंट सिंबल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल माई नम जो हमने वेरिएबल भी बनाया है उसको हम असाइनमेंट कर देते हैं विद से वैल्यू 10। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दिस सिंबल मीन्स इन सूडो कोड दिस सिंबल मीन्स असाइंड टू। ठीक है ना, इससे असाइनमेंट सिंबल। पाइथन में इसको इक्वल साइन के साथ रिप्लेस किया जाता है, लेकिन सूडो कोड में एरो यूज किया जाता है असाइनमेंट सिंबल। अब इस स्टेटमेंट में हो क्या रहा है, इस स्टेटमेंट में ये हो रहा है कि आपकी 10 की वैल्यू माई नम के अंदर स्टोर की जाए। आफ्टर दिस लाइन हैज रन माई नम के अंदर कॉन्टेंट्स जो है वो 10 होंगे, तो बेसिकली आपने 10 को असाइन कर दिया। ठीक है, सो दिस इज असाइनमेंट सिंबल। अच्छा, अब असाइनमेंट के लिए अगर फॉर एग्जांपल वो असाइनमेंट आपकी पूरे प्रोग्राम की उस वेरिएबल की पहली असाइनमेंट थी। ठीक है, so in the whole program if you have carried out assignment for the first time in all of the code, that is known as initialization. So in simple terms, the first assignment in the whole code for a variable is initialization, कि आपने उस वेरिएबल को स्टार्ट किस वैल्यू के साथ करना है। ठीक है, now initialization in a sense is more important than declaration. Now why I say this is because Python में declaration होती ही नहीं है, पाइथन में डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन होती है। उस इनिशियलाइजेशन के साथ ही पाइथन को पता चल जाता है कि इस वेरिएबल की टाइप आगे कौन सी यूज होगी। सो फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल को जीरो के साथ इनिशियलाइज किया है या किसी इंटीजर एक न्यूमेरिक वैल्यू के साथ इनिशियलाइज किया है, तो पाइथन के लिए वो वेरिएबल जो है उसके बाद से इंटीजर टाइप का वेरिएबल बन जाता है। अगर आप उसको एक रियल नंबर दे देते हैं 5.7 वगैरह, दैट मीन्स उस लाइन के बाद पाइथन उस वेरिएबल को एज अ फ्लोटिंग पॉइंट या रियल नंबर ट्रीट करना शुरू करेगा। सो बेसिकली इट्स ऑल इन द इनिशियलाइजेशन। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इन अ सेंस अब देखा जाए तो इनिशियलाइजेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर डिक्लेरेशन। ठीक है, बट डिक्लेरेशन कुछ लैंग्वेजेस में जैसे पाइथन में डिक्लेरेशन होती नहीं, लेकिन विजुअल बेसिक में सी प्लस प्लस में ऐसी लैंग्वेज में डिक्लेरेशन लाजमन चाहिए। सो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम सूडो कोड में यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं बिकॉज यू मे हैव टू ऐड दिस समवेयर। दिस इज द सिंटैक्स फॉर डिक्लेरेशन एंड दिस इज व्हाट्स अबाउट टू हैपन नेक्स्ट इज इनिशियलाइजेशन। ठीक है, नाउ इनिशियलाइजेशन के लिए आपको कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं and the value that you are going to give your variable, the first value that you're going to give your variable largely depends on its type that you've declared before. In this example मैंने my num को variable type दी थी, वो क्या थी, integer. So that means my num को initialize किसी integer variable के साथ देना चाहिए। Now normally normal cases में आपके पास एक अगर integer type का variable है उसको zero से initialize कर दिया जाता है, normally यही होता है। ठीक है, उसको इंटीजर टाइप को आप जीरो से इनिशियलाइज कर दें, बट देयर आर स्पेशल केसेस दैट यू मे हैव टू इनिशियलाइज इट विद सम अदर वेरिएबल। अगर समझे बात को, लेट्स से कि काउंटर है। काउंटर क्या होता है, हम आगे जब फॉर लूप पढ़ रहे होंगे हमें समझ आएगा काउंटर एज द नेम सजेस्ट इट्स अ वेरिएबल दैट्स यूज्ड फॉर काउंटिंग समथिंग। ठीक है, काउंटर को यूजुअली हम 1 से इनिशियलाइज करते हैं। सो बिकॉज मेरा अभी पहली दफ़ा कोई चीज़ चलनी होती है तो अभी काउंटर 1 पे ही होगा, तो हम दैट्स व्हाई द फर्स्ट टाइम समथिंग इज अबाउट टू हैपन आई विल सेट द काउंटर टू 1 बिफोर हैंड। सो यूजुअली काउंटर को 1 से इनिशियलाइज करते हैं, नॉट ऑलवेज बट यूजुअली काउंटर 1 से इनिशियलाइज होता है। एक और स्पेशल केस होता है जब हमारे पास हमने एक वेरिएबल सेव करना है फॉर होल्डिंग एक्सट्रीम वैल्यूज।
अब एक्सट्रीम वैल्यू से मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू या पॉसिबल लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आपने 10 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर बताना है, ठीक है। सो यू वांट टू सेव द स्टेटस ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, यू वांट टू हैव सम मेमोरीज लोकेशन वेयर द लार्जेस्ट नंबर विल बी स्टोर्ड। ज़ाहिर है अगर आपने वेरिएबल में स्टोर नहीं किया तो आप उसको बाद में प्रेजेंट भी नहीं कर सकते। सो यू वांट टू हैव सम प्लेस वेयर दैट नंबर इज स्टोर्ड, ठीक है। ऑब्वियसली आपको वेरिएबल चाहिए, ठीक है। सो एक्सट्रीम केसेस में या एक्सट्रीम वैल्यूज में, if you are creating a variable of integer type to store the largest possible value, उसमें इनिशियलाइजेशन क्या होगी, विद आप उसको क्या करेंगे, विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल, ठीक है ना। पे अटेंशन हियर, अगर आपका एक वेरिएबल है विच इज सपोज्ड टू होल्ड द लार्जेस्ट, लेट्स जस्ट से मैंने एक वेरिएबल बनाया टू होल्ड द टॉलेस्ट पर्सन इन अ क्लास। अब एक्सट्रीम वैल्यूज में अगर आपने वैल्यूज की रेंज बनानी है तो इसमें डिफरेंट सिनेरियोज है। इट कुड बी टॉलेस्ट, हैवीएस्ट, हॉटेस्ट, फास्टेस्ट, समझ आ रही है, अपर एक्सट्रीम्स, ठीक है। सो इफ यू आर ट्राइंग टू सेव a variable which holds the upper extreme of range of values, it could be anything, बताए ना, largest, heaviest, something like that, upper extreme। तो आप क्या करते हैं कि आप अपर एक्सट्रीम जो वेरिएबल जिसने अपर एक्सट्रीम वैल्यू को होल्ड करना है, आप हमेशा उसको ऐसे वैल्यू लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं। सो यूजली दैट्स जीरो, ठीक है, जीरो से कम कुछ नहीं होगा। जैसी आपके पास पहली वैल्यू आएगी जब आप कंपेयर करेंगे, नाउ दैट विल बी द लार्जेस्ट वैल्यू, आप साथ ही इस लार्जेस्ट को रिप्लेस कर देंगे विद दैट न्यूली इनकमिंग वैल्यू। So whenever you're initializing the largest possible value, you will initialize it with 0. So if I were to be comparing 10 numbers and finding the largest value, the first number I encounter, I will compare it with the current largest, which is 0. If that value is non-zero, obviously that first number will become my largest value. And after that, every other number is being compared to the current largest. So अगर मैंने पहला नंबर जो कंपेयर किया तो 5 था, पहले कंपैरिजन में 5 0 से बड़ा है, अब मेरा लार्जेस्ट 5 हो जाएगा। अगला नंबर फॉर एग्जांपल 8 था, वो 5 से कंपेयर होगा, अब नाउ 8 विल बिकम माय लार्जेस्ट। अब लेट्स से आगे कोई 8 से बड़ा नंबर नहीं था, तो हर कंपैरिजन में 8 ही बड़ा निकल रहा होगा, एंड आफ्टर द x number of comparisons मेरे पास 8 will be, the contents of largest will be 8, which will actually represent the largest number in my entire range of values. So whenever you're storing the upper extreme of values, आप उसको हमेशा largest possible, उसको 0 से इनिशियलाइज करें, ठीक है, या the smallest possible value, ठीक है। Now just for example, if you're trying to save temperatures, और टेम्परेचर्स जो है वो बहुत कोल्ड टेम्परेचर्स यानी नेगेटिव में भी हो सकते हैं और वेरी हॉट टेम्परेचर्स भी हो सकते हैं। सो इन दिस केस अगर आपको अंदाजा है कि लेट्स से कि -20 डिग्री से नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता, तो आप -21 से इनिशियलाइज कर दें, यानी कि इससे लोएस्ट टेम्परेचर हो नहीं सकता, एवरी अदर टेम्परेचर इज हायर। सो दैट केस इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो आपका लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू जो जा सकती है ना, वो आपकी -21 या -22, वो आप उसको इनिशियलाइज कर दें। सो अगेन कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो आप इनिशियलाइजेशन कर रहे हो इस स्पेशल केसेस में, इट डिपेंड्स लार्जली ऑन द सिनेरियो, द वर्ल्ड ऑफ योर प्रोग्राम, जो आपके प्रोग्राम जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाह रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल उसमें स्पीड है फास्टेस्ट से स्लोएस्ट, ऑब्वियसली जीरो तो से कोई स्लो स्पीड नहीं होगी ना, तो आप वहाँ पे लार्जेस्ट की 0 से इनिशियलाइज कर दें और बाकी हर आने वाली स्पीड 0 से बड़ी होती जाएगी। इसी तरह टॉलेस्ट भी 0 से तो कोई शॉर्ट कोई चीज़ नहीं है ना, नेगेटिव वैल्यूज तो कोई नहीं होती ना टॉलेस्ट में, तो वहाँ पे भी 0 लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी। लेकिन टेम्परेचर्स में एक पॉसिबिलिटी है कि आप नेगेटिव साइड पे जा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल उस प्रॉब्लम में जो आप सॉल्व करना चाहें वहाँ पे नेगेटिव टेम्परेचर आ सकते हो, तो फिर आप लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू को स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू से इनिशियलाइज करें। इन दैट केस इट कैन पॉसिबली कैन बी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करते हैं। If say for example I was supposed to be storing the lower extreme, ठीक है ना, जैसे हमने अपर एक्सट्रीम लार्जेस्ट, टॉलेस्ट, हैवीएस्ट, हॉटेस्ट, ठीक है ना, ये सेव करने के लिए उसको 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं।
तो हम जब लोअर एक्सट्रीम वाली वैल्यू को स्टोर करते हैं, कोल्डेस्ट, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्लोएस्ट, वट एवर इट इज, ठीक है। जब हमने लोअर एक्सट्रीम की वैल्यूज को सेव करना होता है, उस टाइम पे हम उसको इनिशियलाइज करेंगे विद अब नॉर्मली लार्ज नंबर, यानी लार्जेस्ट पॉसिबल, जो भी शायद अब अचीव ना हो, जो अचीव हो ही नहीं सकती हो। आपकी जो जो प्रॉब्लम है उसमें वो वैल्यू कभी भी नहीं आएगी आप, लेकिन उसकी टाइप वही होनी चाहिए, इंटीजर टाइप होनी चाहिए। तो आप उस वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे टू होल्ड द स्मॉलर वैल्यूज, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसकी रीजन बताता हूँ। लेट्स जस्ट से कि मेरे पास एक प्रॉब्लम है जो कि स्मॉलेस्ट यानी कि लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट ऑफ यानी होल नंबर्स बता रहे हैं, एक सीक्वेंस ऑफ होल नंबर्स है और वो एट मोस्ट 3 डिजिट नंबर होगा, यानी आपके पास सीक्वेंस ऑफ 10 3 डिजिट नंबर्स है और आपने उनमें से स्मॉलेस्ट नंबर बताना है क्या है। अब आपके पास रिक्वायरमेंट ये कि 3 डिजिट नंबर होगा, तो आप एक ऐसा नंबर चूज करें जो कि इस रेंज से बाहर हो लेकिन इंटीजर का भी वैल्यू हो। सो लेट्स जस्ट से मैं उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 999 से। अब ये 4 डिजिट नंबर, my requirement makes it only 3 digit number but I have chosen a very large number। अब मैंने अपने स्मॉलेस्ट वैल्यू को एक एबनॉर्मली लार्ज वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया। अब इसका फायदा क्या होगा कि एनी वैल्यू दैट आई कंपेयर इट, द फर्स्ट वैल्यू आई कंपेयर इट विद, साथ ही वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी, बिकॉज नथिंग इज स्मॉलर, नथिंग इज बिगर देन दिस। जो सी मर्जी आप पहले उठाओगे ना वैल्यू, वो इससे छोटी ही निकलेगी और साथ ही वो स्मॉलेस्ट वैल्यू बन जाएगी। नाउ लेट्स जस्ट से कि मैं अगर स्मॉलेस्ट को भी 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इनमें से मैंने स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है। वो क्या है, देखने से क्या लग रहा है आपको? 1। अब 1 जो है मेरे रिजल्ट में कभी भी स्मॉलेस्ट वैल्यू शो नहीं होगी, बिकॉज मैं एट हर आइट्रेशन में 1 को जो भी नेक्स्ट नंबर होगा स्मॉलेस्ट करंट स्मॉलेस्ट से कंपेयर करूंगा, जो कि जिसके अंदर 0 पड़ा हुआ है। 1 0 से छोटा तो नहीं है, it won't be considered the smallest। 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। एट द एंड मैं 9 कंपैरिजंस के बाद मेरा एट द एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 रिटर्न हो रहा होगा और 0 मेरे एक्चुअल डाटा सेट का पार्ट भी नहीं है। दिस इज अ लॉजिकल एरर, दिस इज रॉन्ग। सो दैट्स व्हाई मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको लार्ज नंबर दे देता हूँ। अब साथ ही मैंने पहली कंपैरिजन 1 के साथ की, इज 1 स्मॉलर देन 9999? यस, instantly 1 will become my smallest value। उसके बाद 2 को 1 से कंपेयर करेंगे, नहीं रिप्लेस होगा। 3 को 1 से कंपेयर करेंगे, नहीं रिप्लेस होगा। एट द एंड 9 को भी कंपेयर करोगे तब भी रिप्लेस नहीं होगा। एंड 1 सिंस इट इज रियली माय स्मॉलेस्ट नंबर, मेरे स्मॉलेस्ट के अंदर भी 1 ही पड़ा होगा, हेंस प्रोड्यूसिंग एन एक्यूरेट रिजल्ट। सो दैट्स व्हाई जब आपने लोअर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए वेरिएबल डिसाइड करना है तो आप उसको एक abnormally large value देते हैं। नाउ द रीजन आई एम सेइंग abnormally large value, it means that value should not be part of your acceptable range of values। वो आउट ऑफ रेंज वैल्यू, टाइप उसकी वही होनी चाहिए लेकिन आउट ऑफ रेंज होनी चाहिए। सो इफ यू आर एक्सेप्टिंग 3 digit numbers, write a 4 digit number in this, because you will never accept this 3 digit number in the whole problem। if it's a 4 digit number, add a 5 digit number to this as the largest possible value, such a large value that you will never achieve in your whole problem। आप उससे इनिशियलाइज करें। ओके, so these are the special cases where in integer type काउंटर होगा तो आप उसको 1 से इनिशियलाइज कर दें, और अगर लार्जेस्ट के लिए, लार्जेस्ट यानी अगेन अपर एक्सट्रीम, मेरा कहने का मकसद लार्जेस्ट नहीं, अपर एक्सट्रीम वैल्यूज है, ठीक है ना। हाईएस्ट, इट कुड बी हाईएस्ट, इट कुड बी टॉलेस्ट, इट कुड बी हॉटेस्ट, इट कुड बी फास्टेस्ट, लेकिन आपकी रेंज ऑफ वैल्यूज में जो अपर एक्सट्रीम वाली वैल्यू को सेव करने वाला वेरिएबल है उसको आप लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू देते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव नंबर्स ओनली, देन 0 इज द बेस्ट चॉइस, ठीक है। इफ यू आर इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स, देन लुक फॉर द लोएस्ट पॉसिबल नेगेटिव नंबर, उससे इनिशियलाइज करें, व्हिच यू विल नेवर अचीव, ठीक है। इसी तरह अपर एक्सट्रीम के लिए, सॉरी लोअर एक्सट्रीम के लिए, अब लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर व्हिच यू कैन नॉट एक्सेप्ट, व्हिच इज बियॉन्ड योर एक्सेप्टेबल रेंज, व्हिच इज बियॉन्ड योर वैलिडिटी रेंज, आप वो डाल दें। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो भी वैल्यू आप इसको इनिशियलाइज कर रहे होंगे टाइप वही होनी चाहिए। तो अब 9999 बेशक बड़ा नंबर बड़ा है इंटीजर ही, और मेरा लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर टाइप के वेरिएबल, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप देखें, व्हाट डू आई डू फॉर अ फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। ये तो मेरे इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हो गए ना, इंटीजर। नाउ लेट्स लुक व्हाट हैपेंस व्हेन आई एम डूइंग फॉर अ फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। अगेन रूल्स इसके लोअर अपर एक्सट्रीम के लिए सेम है, यानी आप लोअर वैल्यूज के लिए भी आप बड़ा नंबर दोगे, सॉरी लोअर वैल्यूज के लिए
हाँ, लोअर वैल्यूज के बड़ा नंबर दोगे, अब बड़े वैल्यूज के लिए लोएस्ट पॉसिबल नंबर दोगे, लेकिन अब जो आप नंबर दे रहे होगे आप उसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स रखो। सो आप इसके अंदर फॉर एग्जांपल 0.0 दे सकते हैं, बाय डिफॉल्ट 0.0। काउंटर कभी भी फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का नहीं होता, बिकॉज काउंटर हमेशा 1+ होता है, ठीक है। इसके अलावा आप एक्सट्रीम वैल्यूज में अगर फॉर एग्जांपल 9999.9 कर दो, लोअर एक्सट्रीम में नेगेटिव करके वैल्यू दे दो, या -0.1 दे दो, ठीक है, लेकिन रियल वैल्यूज दोगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास फॉर एग्जांपल माय एवरेज इज इनिशियलाइज्ड विद से 0.0, दैट्स अ गुड वे टू स्टार्ट, ठीक है ना। व्हाट अबाउट फ्लैग्स, ठीक है ना, इसको हम बूलियन कहते हैं। मोस्ट प्रॉब्लम्स में आपके पास फॉर एग्जांपल एक आइडेंटिफायर है पास के नाम से। मोस्ट प्रॉब्लम्स में आपकी जो इनिशियलाइजेशन फॉर अ बूलियन टाइप वेरिएबल दैट इज ऑलवेज फॉल्स, ठीक है। नाउ यू नोटिस के फॉल्स इज रिटन इन ऑल कैप्स, दैट मीन्स अगेन इट्स अ कीवर्ड, इट मीन्स समथिंग टू माय लैंग्वेज, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे फॉल्स के साथ लिखा हुआ है। अच्छा, इनिशियलाइज फॉल्स से कर दें, उसको बाद में बेशक ट्रू हो जाएगा, लेकिन इनिशियलाइज आपने फॉल्स किया हुआ है। इसी तरह अगर कैरेक्टर है, अगर ये आपको याद होगा कैरेक्टर क्या था, कैरेक्टर सिंगल लेंथ लेटर्स, चाहे वो लेटर्स है नंबर्स है, लेकिन सिंगल लेंथ कैरेक्टर्स अलाउ करता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आप जेंडर के लिए एक वेरिएबल बनाया तो आप इसको इनिशियलाइज कर देंगे विद सिंगल कोट एम्प्टी स्पेस, सिंगल कोट, ये एक एम्प्टी कैरेक्टर है, ठीक है ना। इसी तरह स्ट्रिंग के लिए, अगर आपने स्ट्रिंग के लिए फॉर एग्जांपल नेम एक इनिशियलाइज किया हुआ, तो इसको इनिशियलाइजेशन के लिए आप डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक सो, ठीक है ना। ये एम्प्टी स्ट्रिंग कहलाता है, इसका नथिंग रिटन इन इट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैरी आउट इनिशियलाइजेशन विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। द ट्रिकिएस्ट वन इज ऑफ कोर्स द इंटीजर, because different problems cause the initialization to change with different types of data, ठीक है।